Hello everyone, I'm CA Ashish Jindal and welcome to AYJ Tutorials. So in this video we are going to talk about a very important aspect of recently qualified chartered accountants: good communication skills. What do you mean by communication skills? How a person can improve his communication skills? See, there are many chartered accountants, who recently qualified chartered accountants, who are preparing for the interview. So before going into any interview, one must know what do you mean by communication skills, how a person can improve his communication skills. So I think that this video is going to help you a lot. Chaliye ji, without wasting any time, I think we should start our concept. Chaliye ji. Okay. Communication skills. Okay, who is this cartoon? चलिए, ये कार्टून नहीं है. मैंने इसको एक रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया है. ठीक है जी. तो ये जो किताब हाथ में लिए भाई साहब हैं, ही इज अ रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज वेरी मच वरीड अबाउट हिज इंटरव्यू. ठीक है जी. ओके, तो ये भाई साहब हमसे क्या पूछते हैं, ये हमें बता रहे हैं. He is saying that I have immense knowledge of subject. Will I be able to crack interview? बताइए जी. ये भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं I have great knowledge of subject, whether I'll be able to crack interview. सबसे पहले तो इस भाई साहब को ये बताइए, you are a qualified chartered accountant. If a person is a qualified chartered accountant, ये तो but obvious है that he is having a very immense, you can say, good knowledge, बहुत ज़्यादा deep knowledge of subject. Auditing की, accounting की, taxation की, ये तो but obvious है ना, because you are qualified. आपने ICAI की इंटर को क्लियर किया है, आपने फाइनल्स को क्लियर किया है, तो it is but obvious that you are having a good knowledge of subject. So now he is asking, because I have good knowledge of subject, will I be able to crack the interview? So answer is no. No. Why no? Why no? Because the knowledge part, subject knowledge part is a secondary process. You need to understand this. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं पता ना, कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है. द फर्स्ट पार्ट, द मेन पार्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. नॉलेज पार्ट इज सेकेंडरी पार्ट. देयर आर मेनी कंपनीज where you will see the very first step in their recruitment drive would be screening your communication skills, not the testing your subject knowledge. Okay, there are some rounds like first round, second round, third round, fourth round. You need to clear all rounds in order to crack any interview, and you will see in many companies the very first round would be screening your communication skills only, and whether that would be by any way, like personal HR का इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं. ठीक है जी. तो द वे वुड बी, वो उनके ऊपर डिसाइड, जो वो कंपनी है उनका अलग से तरीका, जो मर्जी हो, बट द वेरी फर्स्ट स्टेप वुड बी स्क्रीनिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ओनली देन यू विल बी एबल टू गो टू प्रूव योर टेक्निकल स्किल्स. I can share with you my experience. See, I have work experience in Big Fours also. I was associated with Deloitte, and I had offer letter from Vedanta Limited. I had offer letter from Infosys Limited. So I know the basic recruitment process of every company. I've been there. So I'll tell you what happened in Vedanta Limited. Vedanta Limited organized its interview. Only 24 candidates were called for that interview. अच्छा, ओनली 24. इनके क्राइटेरिया होते हैं ना, कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस होते हैं, तो ओनली 24 कैंडिडेट्स वर कॉल्ड. अच्छा, तो 24 कैंडिडेट्स को व्हाट डिड दे डू, दे ग्रुप्ड दोस 24 कैंडिडेट्स, और उन्होंने 3 ग्रुप्स बना दिए, 8 candidates in each group. So
जो फर्स्ट राउंड था हमारा वो क्या था, ग्रुप डिस्कशन का। अच्छा, यू वॉन्ट इवन बिलीव कि 12 कैंडिडेट्स वर गॉट दे वर स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड सर, क्यों? Those candidates whose communication skills were not up to that mark, they were straight away rejected. Oh my God. तो आप ये मान लीजिए 24 में से 12 तो कैंडिडेट्स उन्होंने निकाल ही दिए इन द वेरी फर्स्ट राउंड. It means those 12 candidates who got rejected, what do you think? उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं थी क्या? They were qualified chartered accountants. Every person was qualified chartered accountant. What do you think? उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगी क्या? तो सबके पास सब्जेक्ट नॉलेज थी. आंसर इज यस. बट द प्रॉब्लम वॉज किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट गुड. सो इफ अ पर्सन इज हैविंग good communication skills, then only he'll be getting this chance to prove his technical skills, क्योंकि वो second round में जाएगा ही तभी ना. So there are some person whose technical skills are very good. There might be some cases कि जिनकी technical skills जो है उन person से ज्यादा अच्छी हो, जिनकी communication skills अच्छी हैं सिर्फ. ठीक है ना. देयर माइट बी सम केसेस कि पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है बट उनके पास बहुत ज्यादा टेक्निकल एबिलिटीज हैं, बट उनको मौका ही नहीं मिलेगा उस चीज को प्रूव करने का. सो यू नीड टू क्लियर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट नॉलेज एंड व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स. इनकी इंपॉर्टेंस को समझो. ठीक है जी. ओके. अच्छा, नाउ देयर आर ओके. हाँ जी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. अब इस चीज को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती है. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ लैंग्वेज का मतलब क्या था. व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज. लैंग्वेज मतलब सर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज. यस, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज. एंड व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स अबिलिटी. Ability means कौन सी ability? Ability of transferring words. Communication, communicate करने की ability means whatever I am saying is understandable to the another person. जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं, वो सामने वाले पर्सन को समझ आ रहा है. ऐसा नहीं है मैं बोल कुछ और रहा हूं, सामने वाले को समझ कुछ और आ रहा है. तो दिस अबिलिटी, ये अबिलिटी को बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड लैंग्वेज का मतलब क्या है? हिंदी, इंग्लिश. आपको कंफ्यूज नहीं होना. इफ आई एम वेरी मच गुड इन इंग्लिश इट मींस मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है. ऐसा नहीं है. अगर आई एम वेरी वेरी गुड इन हिंदी, व्हाट डू यू थिंक, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप मुझे एक बात बताओ ना कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये जो भी लैंग्वेज है ये तो चलेगी, बट क्या इसको मैं ऐसे मान सकता हूं कि इफ आई एम वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड? मैं बोल सकता हूं? आंसर इज नो. लैंग्वेज इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. क्या मतलब है सर? यू हैव टू डिसाइड इट कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए प्रेफरेबल है. लाइक आई टेल यू, इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू इन इंडिया फॉर प्राइवेट सेक्टर, इंग्लिश इज मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज. Means you do not have any other choice. You have to be fluent in English. तो लैंग्वेज, वैसे लैंग्वेजेस कोई भी हो सकती है, बट आपके पास चॉइस नहीं है. योर लैंग्वेज चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया. क्यों? क्योंकि इंग्लिश चाहिए सबको. सो यू हैव टू फर्स्टली, बिफोर गोइंग इनटू कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर तो अभी हम बाद में जाएंगे. Before going to that, you firstly start
you have to start working upon your language, and that is English. But English is not only the language. There are some companies like governmental organizations में mostly ऐसा होता है that you are given some options like in which language you want to give your interview. like आपको हिंदी में देना है suitable है, या फिर आपके लिए इंग्लिश suitable है, और any other language जो regional language है, like you are going for state governments examinations या फिर state government के किसी interview में जा रहे हो, then you get this opportunity to choose your language. तो उसमें हमको फिर उस लैंग्वेज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. इफ वी आर चूजिंग हिंदी, देन हमें हिंदी में फ्लुएंट होना चाहिए. So first of all, choose your language and start working upon that language. If you are targeting private sector, if you are targeting those companies in which English is a preferable language, please start working upon that language. And mostly cases में English, इंडिया में अगर आप इंटरव्यू दोगे तो English is the preferable language and you have to be fluent in that language. क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक एबिलिटी है. एबिलिटी बाद में आएगी अगर हमें लैंग्वेज आती है. आप मुझे बताओ ना, अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग टू अनदर पर्सन इन रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, लाइक माई रीजनल लैंग्वेज इज पंजाबी, इफ आई एम टॉकिंग इन पंजाबी विद अदर पर्सन, ऑटोमेटिकली वो सारे जो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के पैरामीटर्स हैं वो मुझ में आ जाते हैं. मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज आती है. तो इसका मतलब क्या है कि जो एबिलिटी है ना कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो हमारे अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है इफ वी आर वेरी गुड इन अवर लैंग्वेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आपकी लैंग्वेज के ऊपर काम जो है शुरू करना है. यू हैव टू बी फ्लुएंट इन योर लैंग्वेज. ठीक है जी. एंड उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ we'll see what other than the language, what are the parameters in which you need to work upon to improve your communication skills. Now let's see that. See, the first parameter is clear and concise. It is a very important parameter for good communication skills. Whatever, see, the interviewer is not taking only your interview. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा. तो आप जो भी बोलो, whatever you speak, उसको क्लियर, वो सामने वाले पर्सन के लिए क्लियर हो. सबसे पहले तो वेग नहीं होना चाहिए. वो केयरलेसली, यू शुडंट बी स्पीकिंग एनीथिंग केयरलेसली, कि जो भी मुंह में आ रहा है हम बोली जा रहे हैं. ठीक है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए. इफ आपसे सामने वाला पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं. सामने वाला पर्सन आपसे एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन पूछता है, लाइक क्लोजिंग स्टॉक को आप कैसे वैल्यू करोगे. ठीक है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन विच इज बीन आस्क्ड फ्रॉम एन इंटरव्यूअर कि हाउ यू विल वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक. तो आपका सिंपल आंसर क्या होना चाहिए सर? एज पर, अगर आप इंडेस की रेफरेंस दे रहे हो तो आप इंडेस 2 बोल दोगे, आप एएस की रेफरेंस दे रहे हो तो एएस 2 बोल दोगे. आप बोल दोगे एज पर दिस ये होना चाहिए. लाइक आपको क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर वैल्यू करना चाहिए? एनआरवी और कोस्ट, विच एवर इज लो. ये इसको क्या बोलेंगे? क्लियर एंड कंसाइज आंसर. उसके बाद इंटरव्यूअर ने अगर आपसे कुछ पूछना है तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेगा. बट कई कैंडिडेट्स की आदत क्या होती है, वो स्टार्ट कर देते हैं. एज पर AS2 इन्वेंट्री ये होती है, क्लोजिंग स्टॉक में ये चीजें इंक्लूड होती हैं. ठीक है, एनआरवी ये होती है, कोस्ट इसको बोलते हैं. फिर वो एंड पे जाके आएंगे, हाँ जी वैल्यू करते हैं ऐसे. भाई ही इज नॉट आस्किंग यू फुल इंड AS, ही इज नॉट आस्किंग यू फुल AS. तो ये एक एग्जांपल है क्लियर एंड कंसाइज के. मीन्स योर आंसर शुड बी क्लियर. कि क्लियर मतलब वेग नहीं है. आप जो भी बता रहे हो वो बिल्कुल टू द मार्क बता रहे हो, अप टू द मार्क बता रहे हो, वो सामने वाले को अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर है. और आपका आंसर इज कंसाइज. ऐसा नहीं है कि आपने सारी राम कथा सुनानी है उसको.
ठीक है, यू नीड नॉट, आप उस वहां पे ये प्रूव करने के लिए नहीं बैठे हो कि आपने अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका सारा राम कथा मुझे पता है। ठीक है, इंटरव्यूअर को चांस दो कि वो आपसे क्वेश्चन करे। ठीक है जी। ओके, सेकेंड पैरामीटर इज रिस्पेक्ट। अच्छा, ये कौन सी रिस्पेक्ट है जो मैं बात कर रहा हूं कि लाइक हम इंटरव्यूअर के रूम में जाते हैं, हमने इनको ग्रीट किया, सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये वाली रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। सी, दिस इज ओनली नॉट ओनली द रिस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये रिस्पेक्ट तो सर हर बंदा करता है, ये रिस्पेक्ट तो सर हम करते ही हैं, इंडिया वाला कोई भी पर्सन ऐसी रिस्पेक्ट तो करता ही है, क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति में है ना, ग्रीट करना, नमस्ते करना, पैरी पोना करना, दीज काइंड्स ऑफ थिंग, ये तो हमारे बोलते हैं ट्रेडिशन में है। बट कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं किस रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, आपके वर्ड्स की रिस्पेक्ट। मीन्स आप अगर कुछ बोल रहे हैं, वो ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को दैट यू आर स्पीकिंग एवरी सिंगल वर्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। वो कैसे लगेगा, लाइक आपको हाइपर नहीं होना है, आपको जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आपको आंसर पता है एंड यू गेट वेरी एक्साइटेड, और उस एक्साइटमेंट में हमारी जो वर्डिंग है वो लाउड हो रही है, ये चीजें दिस शोज डिसरिस्पेक्ट टू द अनदर पर्सन। ठीक है, आपको बड़े सिंपल तरीके से बैठना है वहां पे, आपको बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से लेट दैट इंटरव्यूअर कंप्लीट हिज क्वेश्चन, देन आपको रिस्पेक्टफुल तरीके से पूरे क्वेश्चंस का आंसर देना है, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि यू आर नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। आपको बीच में काटना नहीं है, लाइक कि सामने वाले पर्सन ने कुछ क्वेश्चन पूछा एंड यू आर कटिंग दैट हिम ऑफ, आप उसको बीच में कट कर रहे हो एंड यू आर नाउ गिविंग योर ओपिनियन, यू आर नाउ गिविंग योर आंसर। ठीक है, तो ये चीजें डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती हैं। तो रिस्पेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट फ्रॉम योर वर्ड्स, आपके वर्ड्स से दिखना चाहिए दैट यू आर रिस्पेक्टिंग हिम। ठीक है जी। ओके, थर्ड पैरामीटर इज लिसनिंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग स्किल्स क्या होती है कि क्या आप में एबिलिटी है कि आप दूसरे वाले का सुन रहे हो। ग्रुप डिस्कशंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ग्रुप डिस्कशंस के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे ग्रुप डिस्कशंस के पैरामीटर्स क्या है, बट बिकॉज ग्रुप डिस्कशन में जो आपका मेन पर्पस होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही होता है चेक करना। तो लिसनिंग स्किल्स का मतलब है वेदर वी हैव दिस एबिलिटी that we can listen to other person patiently। ठीक है जी, आप पेशेंस से किसी दूसरे पर्सन की बात सुन सकते हो, क्या आप में ये एबिलिटी है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, कई बंदों जो कैंडिडेट्स हैं उनमें क्या आदत होती है कि दे आर नॉट रेडी टू लिसन, उनको सुनना ही नहीं है, वो उनको सिर्फ अपना बोलना है। तो इफ जैसे कई बार क्या सिचुएशंस हो जाती हैं, लाइक इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और आपका आंसर जो है वो गलत है अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर, सपोजिंगली। ठीक है, तो आपने कोई क्वेश्चन का आपको उसका आंसर पता था, आपके दिमाग में 2-3 आंसर्स चल रहे थे, आपने पहले वाला आंसर दिया, वो गलत हो गया। अब क्या हुआ, जो इंटरव्यूअर है वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है दैट योर आंसर इज रॉन्ग एंड नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग यू द राइट आंसर। अब यहां पे कई बार क्या होता है ना, आउट ऑफ आवर एक्साइटमेंट, आउट ऑफ आवर स्ट्रेस, एंजाइटी के कारण हम क्या करते हैं, हम उसको कट कर देते हैं बीच में और बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, आई नो दिस। What do you think? Is this आपकी ये लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव क्या शो करता है कि ये आप में लिसनिंग स्किल्स है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। एक तो ये डिसरिस्पेक्टफुल हुआ सामने वाले पर्सन को, और दिस शोज कि यू डू नॉट हैव पेशेंस इवन दो यू न्यू द आंसर, बट यू वर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी ना कि आप पहली दफा आंसर सही बोलते, बट अब नहीं बोला आंसर, तो अब आपको आराम से सुनना है, यू हैव टू लिसन। ठीक है जी। एंड लास्ट पार्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कि
एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी ले उठा के देख लो आप, कोई भी कंपनी ऐसे बंदे को हायर नहीं करेगी जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। सो कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स you should be confident in every phase. Like if you know the answer, you should speak that answer in a confident way. If you do not know the answer, then also you have to maintain your confidence. So confidence is एक ऐसी चीज, देखो हर एक पर्सन को हर चीज नहीं आ सकती, पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। इट डजंट मीन कि अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे तो आपको 5 के 5 के आंसर देने हैं, आपको 5 के 5 आने चाहिए, इट डजंट मीन, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है जी। तो अगर 5 में से 4 क्वेश्चंस के आप आंसर दे रहे हो या 3 के दे रहे हो, 2 के नहीं भी दे पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देना है, ठीक है जी। तो ये कंपनीज वाले जो एचआर हैं, जो मेन पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, टेक्निकल इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई भी इंटरव्यूअर ये चीज आप में देखता है कि वेदर आप में कॉन्फिडेंस, क्योंकि कंपनी जब आपको हायर कर लेगी, आप जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, देयर माइट बी सम सिचुएशंस कि आपको कोई चीज ना आए, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत हो, तो क्या आप उन सिचुएशंस में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे तो कंपनीज को कितना लॉस हो जाएगा बताओ। तो कंपनी स्टार्टिंग में आपसे ये चीज चाहेगी कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, कई कैंडिडेट्स को आंसर पता भी होता है, फिर भी वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। आई नो द आंसर एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक दैट इन अ कॉन्फिडेंट वे। तो आप मुझे ये बताओ, उस पर्सन को हायर करके हम करेंगे क्या ना, उसको अपने ही आंसर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बताओ, आपको अपनी ही एबिलिटी के ऊपर शक है, तो ऐसे पर्सन को कंपनी क्यों हायर करेगी भाई, बताओ मुझे। लाइक आपसे किसी ने पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि जो सैलरी के ऊपर टीडीएस जो है वो कौन से सेक्शन में कटता है। लाइक मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मुझे पता है कि सर 192 है इसका सेक्शन, मैंने बोल दिया दैट सर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एंड सामने वाला कह रहा है कि आर यू श्योर, वो अब जानबूझ के बोला आर यू श्योर, आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाएगा घूमना, अरे कोई अमेंडमेंट तो नहीं होगी, मुझे तो 192 लग रहा था, सर मे बी 194, यहां पे पड़ गया ना पंगा। What this shows? This shows you knew the answer, even then you were not confident. So confidence is also a very important parameter of a communication skill. अच्छा, ये confidence की वजह से हमारी जो communication है उसमें impact पड़ता है। If I have the confidence, मेरी जो wording होगी, मेरे जो आंसर्स होंगे, वो इतने ज्यादा सामने वाले को समझ, अच्छे तरीके से समझ आएंगे, रेदर देन अ पर्सन हु इज हैविंग लैक कॉन्फिडेंस। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो मेरे आंसर्स जो होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, वो उनमें फ्लोज होंगे, लाइक लाइक मैं डर डर के बोल रहा हूं, तो सामने वाला पर्सन को वो जो मैं एक्चुअल में ट्रांसमिट करना चाहता हूं, जो मेरे अंदर है, भावना है, जो मैं व्यक्त करना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं, वो बताई नहीं जाएंगी अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है जी। सो दीज आर द पैरामीटर्स विच यू नीड टू वर्क अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब मैं आपको आपके स्टेप्स बता देता हूं सर, क्या करना है आपको। First of all, you need to decide your language, and that would be English only if you are targeting the private sector mostly. So your preferable language would be English. So you have to start working upon your English language. How you can improve your English language? So we can make a separate video over that. So how you can improve your English? So first of all, start working upon your English. After then, start working upon these parameters. These 4 पैरामीटर्स, ठीक है जी। चलिए जी, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।